Namaskar student. In our chapter 19 means of transport, we started waterways in our previous lecture. So what is waterways? Water transport is one of the oldest and cheapest modes of transport. It is very useful for transporting heavy and bulky goods. The ships that carry goods are called cargo ships, means ऐसे शिप जिसे हम गुड्स कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, हैवी गुड्स वाटरवे में, दैट इज़ कॉल्ड कार्गो शिप। आवर कोस्ट लाइन इज़ वेरी लॉन्ग एंड हैज़ मैनी सी पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट। सम ऑफ द पोर्ट्स आर वेरी बिग एंड बिजी। हमारे कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको मैप बनाकर समझाया था दैट वी हैव मैनी सी पोर्ट्स बिकॉज वी हैव अ वेरी लॉन्ग सी कोस्ट। ओके, सो some are very important and big seaports. Okay, so firstly we will read about today we will read about the important and busy seaports of India. Okay, so let's start. Which are these? Major seaports are Kandla in Gujarat. Okay, in Gujarat we have many ports, but Kandla is very big and busy port. Okay, and the Mumbai it is in Maharashtra. In Maharashtra we have also many ports, but Mumbai ports and Jawaharlal Nehru, it is also in Maharashtra. Both are very important, busy and big seaports of India. Okay, and the fourth is Marmago, it is in Goa, and the fifth is New Mangalore, Karnataka. Okay, it is very important and big and busiest port in Karnataka. Now the sixth is Cochin, it is in Kerala. Okay, now the Tuticorin, Tamil Nadu. Now the Chennai, it is also in Tamil Nadu. Okay, now the ninth one is Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and the 10th one is Paradeep, it is in Odisha, and the Haldia, West Bengal. Haldia port is in West Bengal state, and the Kolkata is also on West Bengal. But student, Kolkata is a big and busiest port, but it is not a sea port. ये सी पोर्ट नहीं है. Here is also given, do you know Kolkata is not on the sea coast, it is on the bank of the river हुगली. ये रिवर हुगली पर है, जो कि कोलकाता में एक बहुत ही बड़ा और बिजिएस्ट पोर्ट है. दैट इज वाई इट्स ऑल्सो कम इन अवर बिग एंड बिजिएस्ट पोर्ट, बट इट इज नॉट अ सी कोस्ट, इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली. ओके, नाउ वी विल डू दीज पोर्ट्स ऑन द मैप ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट. हियर इज गिवन द मैप ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. Okay, so we will do all the ports, all the major sea ports on the political map, where are their location and in which state these are. So firstly we studied that Kandla port. Kandla port is in Gujarat. यहाँ पर देखो बच्चों, इंडिकेटर what you have to do. Firstly you have to make your indicator box. इंडिकेटर बॉक्स बनाकर आप इंडिकेट करोगे कि सबसे पहले आपको स्टेट दिखाना है, फिर आपको उस स्टेट के अंदर वो सी पोर्ट कहाँ है वो दिखाना है. ठीक है, तो उस मैप में कुछ सिंबल्स होते हैं और साइन होते हैं जो कि लैंग्वेज ऑफ मैप कहलाते हैं. यू विल रीड अबाउट दिस थिंग इन योर 5th स्टैंडर्ड. और ये सिंबल और साइन हेल्प करते हैं मैप को रीड करने में, मैप को समझने में और पढ़ने में. तो हियर इज द डॉट सिंबल विच शोज स्टेट्स. जैसे यहाँ पर जहाँ भी आपको डॉट दिख रहे हैं, ये डॉट उस स्टेट को बता रहे हैं, यानी कि कौन सा स्टेट ये है. और हियर इज द शिप शेप, यहाँ पर एक शिप का सिंबल है. ये शिप का सिंबल क्या है? दीज सिंबल्स आर शोइंग यू द सी पोर्ट्स. एंड हियर इज ब्लैक ट्राइंगल. ब्लैक ट्राइंगल इज शोइंग कोलकाता पोर्ट विच इज नॉट अ सी पोर्ट, इट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली. ओके, तो कोलकाता पोर्ट को मैंने अलग दिखाया है यहाँ पर. क्यों? क्योंकि ये सी पोर्ट नहीं है, बट इट इज ऑल्सो कम्स इन इंडियाज मेजर सी पोर्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर वर्क ऑन द मैप. Firstly we have Kandla port which is in Gujarat. So where is the Gujarat state?
on the map of India? We have Gujarat in west side. Here is Gujarat. Okay, and this dot is showing you the symbol of state. Put dot here and write the Gujarat and make the C symbol here. This is Kandla Port. गुजरात में कंडला पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पर. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मुंबई. मुंबई इज इन महाराष्ट्र. सो दिस इज महाराष्ट्र. दिस पॉइंट इज शोइंग यू महाराष्ट्र and here is Mumbai port, and below the Mumbai we have Jawaharlal Nehru port. After then we have Marmago. It is in Goa. Here is Goa. Okay, and this is Marmago port. After then we have New Mangalore port. It is in Karnataka. Here is Karnataka, and here is this symbol is showing you. This is showing you New Mangaluru port. Okay, after then we have Cochin. कोचीन को बच्चों के से भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर के से लिखा होता है और कहीं पे सी से भी लिखा हुआ होता है. तो here is कोची. कोचीन port, it is in Kerala. Okay, in which state? Kerala. Cochin port is in Kerala state. After then we have Tuticorin in Tamil Nadu. Which state? Tamil Nadu. And where is the Tuticorin port? Here. Here is the Tuticorin port, and we have Chennai port here. And after then we have Visakhapatnam. Visakhapatnam is in Andhra Pradesh state. Here is the Andhra Pradesh state, and where is it located? Where is Visakhapatnam port is located in Andhra Pradesh? Here. यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट लोकेटेड है. ओके, एंड आफ्टर देन वी हैव Paradip port. It is in Odisha. Which state? Odisha. And where it is located? Here. And then we have Haldia port. Haldia port is in West Bengal. Okay, and where it is Haldia port? Here. And after then we have Kolkata. Okay, Kolkata is a sea, not a sea port. It is on the river. It is on the bank of river Hooghly. So this blue triangle is showing you Kolkata port. Okay, so these are our major seaports. Okay, and Kolkata is a major seaport of India, major port of India, but it is not a seaport. Okay, it is on the bank of river Hooghly. So these all are done. Now we will do the airways. Now airways, it is the most comfortable and fastest mode of travel. अब बच्चों जो एयरवेज हैं वो क्या हैं? हमारे सबसे कंफर्टेबल और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रेवल है. इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी जा सकते हैं. बट इट इज़ कॉस्टली. एज इट इज़ कॉस्टली द कॉमन मैन कैन नॉट यूज़ इट. एयरवेज जो हैं बच्चों बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए जो कॉमन मैन है, जो जनरल पीपल हैं, जो बहुत गरीब हैं या फिर मिडिल फैमिली के हैं, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते. वी हैव 15 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एंड मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स टू. अब इंडिया के अंदर बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, बट वी हैव मेजर 15 इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड मैनी डोमेस्टिक एयरपोर्ट. अब व्हाट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टूडेंट? इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट है जहाँ से हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए एयरवेज मिल सकता है. हम एयरवेज वहाँ से अवेलेबल है. एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट किसे कहते हैं? डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे ऐसे प्लेन और एयरवेज वर्क करते हैं, मीन्स ऑफ एयरवेज वर्क करते हैं जो हमें अपनी कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं. मीन्स अपनी कंट्री में ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर जाते हैं. तो ऐसा एयरपोर्ट जहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट अवेलेबल है उन्हें हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहते हैं, और ऐसे एयरपोर्ट जहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट भी अवेलेबल है उसे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच आर द 15 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वी हैव.
Now here is the definition of international airport. An international airport is one from where we can fly to another country, and domestic airlines ऑपरेट ओनली विद इन द कंट्री, जो कि सिर्फ हमारी कंट्री के अंदर ही ऑपरेट करती है, वर्क करती है, उसे हम डोमेस्टिक एयरलाइन कहते हैं. नाउ हियर द एयर इंडिया ऑपरेट इंटरनेशनली. जो एयर इंडिया है बच्चों वो इंटरनेशनली जो है वर्क करती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेकर जाती है. नाउ लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज रिटन ऑन द एयरप्लेन. इट इज़ एयर इंडिया. अब इसे देखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एयर इंडिया, एंड इज़ ऑपरेटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. जो एयर इंडिया है बच्चों वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू वर्क करती है, ऑपरेट करती है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आती है. और एयर इंडिया के अलावा भी बहुत सारे जो हैं एयरवेज हैं, लाइक प्राइवेट एयरलाइंस लाइक जेट एयरवेज, इंडिगो, किंगफिशर, ये सब क्या है, प्राइवेट एयरवेज है. एंड गो एयर एक्सेट्रा, दीज आर द प्राइवेट एयरवेज, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का है, जिसे गवर्नमेंट मैनेज नहीं करती, कोई पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर पर्सन उसे मैनेज करता है और उसका ऑनर है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अब here is also given private airlines like Jet Airways, Indigo, Kingfisher, Go Air, etc. are also being operated. Now the almost all states capital have airport. अब बच्चों देखो, सभी स्टेट, जो जितने भी स्टेट हैं हमारे, लगभग सभी स्टेट के अंदर, स्टेट के जो कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ पर एयरपोर्ट हैं. वी हैव द फॉलोइंग मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अब हमारे पास जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं बच्चों वो कौन कौन से हैं. राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ इन पंजाब. ओके, तो जो पंजाब है, पंजाब के अंदर कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नाउ द सेकेंड इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ इन न्यू दिल्ली. अब दिल्ली के अंदर न्यू दिल्ली एक सिटी है, और न्यू दिल्ली ऑल्सो इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली एंड ऑल्सो द कंट्री कैपिटल ऑफ इंडिया. सो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज वेयर, इट इज़ इन न्यू दिल्ली. एंड द थर्ड इज छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट इज़ इन मुंबई. एंड मुंबई इज इन विच स्टेट, इट इज़ इन महाराष्ट्र. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज next is Chennai International Airport. Chennai International Airport is in which city? Chennai city, and it is comes in Tamil Nadu. Which state? It's come in Tamil Nadu. Okay, now the fifth is Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, it is in Kolkata. Okay, and Kolkata, it is in Kolkata city, and Kolkata comes in which state? It is comes in West Bengal. Okay, so we have 5 main international airport. First is Raja Sansi International Airport, it is in Punjab, and Indira Gandhi International Airport, it is in New Delhi, and Chhatrapati Shivaji International Airport in Mumbai, Chennai International Airport in Chennai, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता. अब बच्चों देखो, पंजाब में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर उसे हम साइड में रखें तो जो बाकी के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं हमारे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन न्यू दिल्ली, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इट इज़ इन मुंबई, और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन चेन्नई, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोलकाता. ये चारों के चारों हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं. ओके, विच कम्स इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. जब हम इन स्टेट्स को मैप पर अगर ज्वाइन करें तो इस तरीके से यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई और यहाँ पे कोलकाता आता है. तो जो ये शेप बनती है इसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. और क्योंकि ये इंडिया की इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो एक जगह से, एक सिटीज़ से दूसरे सिटीज़ को जोड़ रही है, आपस में महानगर है ये, दैट इज़ वाई इट्स नॉन एज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये चारों की चारों सिटीज़ इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज यू मस्ट हैव सीन अ हेलीकॉप्टर. अब आपने बच्चों हेलीकॉप्टर भी देखा होगा. हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मीन्स ऑफ एयरवेज.
Okay, and these are also a very useful means of air transport. हेलीकॉप्टर एयरलाइंस से छोटी होती है लेकिन ये बहुत ही यूजफुल होती हैं. दे आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड इन हिली एरियाज. अब बच्चों देखो, हिली एरियाज में जो हिल का एरिया है वहाँ पे एरोप्लेन वर्क नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये बड़े होते हैं, इन्हें लैंड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए. लेकिन जो हेलीकॉप्टर होते हैं, हेलीकॉप्टर छोटे होते हैं साइज़ में और उन्हें कहीं भी इजीली लैंड किया जा सकता है. उन्हें लैंड करने के लिए छोटी सी जगह की ज़रूरत होती है. तो जो हिली एरिया है वहाँ पर एयरलाइन वर्क नहीं करती, तो ऐसी जगह पर हम हेलीकॉप्टर्स यूज़ करते हैं. और शॉर्ट डिस्टेंस, अगर हमें थोड़ी सी दूरी में जाना है तो थोड़ी सी दूरी के लिए सपोज राजकोट से मोरबी के लिए हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ था, तो ये क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है जहाँ पर हम प्लेन से नहीं जा सकते. तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी हम हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं. तो हिली एरियाज़ में और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो हेलीकॉप्टर्स आर यूजफुल इन मैनी अदर नेचुरल डिजास्टर्स. दे आर मोस्ट यूजफुल और and provide help in disasters or emergencies like flood, drought and other natural और मैन मेड क्लाइमेटीज. क्लाइमेटीज का मतलब बच्चों जो आपदाएं, जो मीन्स आपदा मीन्स समस्या आती है, जो प्रॉब्लम आती है. जैसे अर्थक्वेक आ गया तो सब कुछ गिर जाता है. अगर ज़्यादा अर्थक्वेक है तो घर गिर जाते हैं, लोग दब जाते हैं. ऐसी जगह पर आने जाने के लिए फ्लड हो, फ्लड यानी बाढ़ आ जाना, जब बारिश होती है और बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है. अभी जैसे आपने देखा होगा कि भुज में, राजकोट में, गिरनार में बहुत सारी जगह पर फ्लड आया, बारिश की वजह से बहुत पानी भर गया था. तो ऐसी कंडीशन में लोगों के लिए हेल्प पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर यूज़फुल होते हैं. हेलीकॉप्टर क्या करते हैं, ऐसी जगह पर ऊपर फ्लाई करते रहते हैं और वो वहाँ से लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ें नीचे गिराते हैं. और अगर लोग यहाँ नीचे वाटर में फंसे हुए हों तो ये रस्सी के जरिए और लैडर्स, जो रॉक वाली लैडर्स होती है, उसके थ्रू लोगों को ऊपर अपने पास ले लेते हैं और उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं. तो इस तरीके से जो नेचुरल डिजास्टर्स है या फिर मैन मेड डिजास्टर्स है या फिर कोई भी इमरजेंसी है तो उसमें हेलीकॉप्टर बहुत ही यूज़फुल होते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वी विल डू इट ऑन द मैप इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. ओके स्टूडेंट, नाउ टेक केयर, बाय.